Okay, let's start with motion and electromotive force. Means if the conductor is moving, or if the conductor is in motion in constant magnetic field, the conductor will behave as a battery. Okay, or there will be an EMF induced over there. This is the basic part. ठीक है, ये हो गया ये टॉपिक का मीनिंग. Now coming to translation, there are two types of motion. Conductor, in this topic we'll be studying two types of motion of the conductor. One is translational motion and second one is rotational motion. Here the conductor used is of a shape of bar magnet. So the conductor can also be known as a sliding bar. And in rotational motion, again the conductor will be used of shape of bar magnet. So there the conductor can be known as rotating bar. ठीक है. Now let's start with a basic thing. You all have studied this in you have studied this in magnetic field due to electric current. That is Lorentz force on electrical charges, that is positive and negative charge. Lorentz force is a combination of two forces, that is magnetic force and electric force. If a charge is placed in magnetic field, the charge will experience magnetic force. Okay, if a charge is placed in electric field, it will experience electric force. Magnetic force is given by the formula V into B, that is charge and cross product of V and B, vector V and vector B. Electric force is given by formula charge into electric field. Acha. Now if you see, the electric force is about electric force. Okay, if the charge is at rest in electric field hai, charge is at rest, then also if the charge is at rest, then also the charge will experience electric force, because we do not have any velocity term over here. Charge अगर move नहीं कर रहा है, charge is at rest electric field में. ठीक है, एक चार्ज ले लो और इलेक्ट्रिक फील्ड में वो चार्ज को रखा है, तो वो चार्ज के ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स होगा ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड. नाउ कमिंग टू मैग्नेटिक फोर्स. इफ द चार्ज इज मूविंग in the magnetic field, देखो velocity है, means the charge should move. If the charge is moving in the magnetic field, again I repeat, if the charge is moving in the magnetic field, then there will be force on the charge known as magnetic force due to magnetic field. ठीक है. Now this is vector quantity. So if I want to remove cross product, we have sin theta over here. If we remove dot product, we use cos theta. Okay. Now Lorentz force is the combination of magnetic force and electric force. I have written that. Lorentz force is the combination of these two. I have written the formulas of both the forces. Then Q is common, that is charge is common. So we have removed that. It can be positive or negative, because Lorentz force is on both the charges, means positive. If you are using positive charge, here it will be positive Q, and if you are using negative charge, it will be electron, that is minus E. Okay. Now E, that is electric field, whatever term was left after removing the constant, we have written that over here. Okay, now starting with the first part, there are this topic is divided into three subtopics. So starting with the first part, now we have considered a rectangular loop over here, or rectangular frame made up of the wire, conducting wire. So let's name the wire or the loop made up of, or the frame, rectangular frame made up of the wire. Let's name it A, B, C, D. Now this BC side of the wire can be slided, can be moved. Okay, it can be moved either outside or inside. It can be moved. Acha, how much part will be considering? Only this orange colored part will be considering, not this blue colored part. ठीक है, हमको consider कौन सा part करना है कंडक्टर का? सिर्फ orange वाला part, which I have shown outside over here. अच्छा ठीक है. Now since the magnetic field is going, थोड़ा सा बेसिक और बताती हूँ. Magnetic field is going inside the plane of the paper. See, यहाँ पर मैंने क्रॉस मार्क दिया है, means magnetic field is going inside the plane of the paper. If the magnetic field is going inside the plane of the paper, ठीक है, magnetic field is going inside the plane of the paper. आगे देखते हैं. Now what I'll do, as we can move this side, तो इसको मैं क्या करती हूँ, इसको मैं थोड़ा सा आगे लेकर आ जाती हूँ. जैसे ही मैंने इसको मूव किया, ये वाले कंडक्टर को या ये वाले साइड को, दैट इज़ BC, जैसे ही मैंने इस वायर को BC को आउट, मतलब इस तरफ खींचा विथ वेलोसिटी V, क्या होगा? ये मैंने खींचा, यहाँ पर देखो मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज हो गया. इंक्रीज हुआ डिक्रीज हुआ हमको मतलब नहीं. मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ मीन्स देयर विल बी इंड्यूस EMF. इफ देयर इज इंड्यूस EMF, देयर विल बी इंड्यूस करंट. If there is induced current, what will be the direction of the induced current? See, magnetic field is going inside the plane of the paper, and induced current opposes the father, opposes the cause which produces it.
जिसने उसको प्रोड्यूस किया है उसको वो अपोज करता है। प्रोड्यूस किसने किया? वो मैग्नेटिक फील्ड जो अंदर जा रही है। अब यहाँ पर जो इंड्यूस करंट होगा वो कौन से डायरेक्शन में होगा कि जिसने उसको प्रोड्यूस किया उसको अपोज करे? प्रोड्यूस किसने किया? जो मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रही है। तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ होनी चाहिए? मैग्नेटिक फील्ड बाहर होनी चाहिए, अपोज कर रहा है। अगर मैग्नेटिक फील्ड बाहर होगी तो करंट का डायरेक्शन, दैट इज इंड्यूस करंट का डायरेक्शन ऐसा होना चाहिए। सो सी, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस करंट। ठीक है ना, इफ दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस करंट, आई हैव बीन टेलिंग दिस थिंग, करंट ऑलवेज कम्स आउट फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। तो इफ दिस कंडक्टर विल स्टार्ट बिहेविंग एज अ बैटरी बिकॉज इट इज मूविंग इन द कॉन्स्टेंट मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड तो कॉन्स्टेंट है, वो चेंज नहीं हो रही। अच्छा, अगर ये कंडक्टर मूव हो रहा है कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड में तो इट शुड बिहेव एज अ बैटरी। तो कौन सा साइड पॉजिटिव रहेगा, कौन सा साइड नेगेटिव रहेगा? ऑफ कोर्स ये वाला ऊपर वाला साइड पॉजिटिव रहेगा, नीचे वाला साइड नेगेटिव रहेगा। हाँ बराबर है, क्योंकि करंट यहीं से जाने वाला है। ठीक है, अनदर वे टू फाइंड आउट द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी इज, अब यहाँ अगर देखो, दिस इज योर कंडक्टर, ओके नाउ दिस इज योर कंडक्टर। कंडक्टर को हम कहाँ स्लाइड कर रहे हैं? इस साइड। दिस इज योर कंडक्टर, हम कंडक्टर को इस साइड स्लाइड कर रहे हैं। मीन्स ऑरेंज स्केच पेन इज शोइंग द वेलोसिटी। वेयर इज द मैग्नेटिक फील्ड? अगर ऐसे दिखाऊं तो वेयर इज द मैग्नेटिक फील्ड? इनसाइड द प्लेन ऑफ द पेपर। ये रही मैग्नेटिक फील्ड इज इनसाइड द प्लेन ऑफ द पेपर। मैग्नेटिक फील्ड इज शोन विद द हेल्प ऑफ द ब्लू स्केच पेन इनसाइड द प्लेन ऑफ द पेपर। सो क्या करना है, अपने राइट हैंड को ऐसे ओपन करना है, फिंगर्स को वेलोसिटी की डायरेक्शन में रखना है और फिंगर्स को लेके जाना है मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में। देखो, फिंगर्स को लेके जाना है मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में, ऐसे। ठीक है, तो हम ऐसे जो पोजीशन है वो पोजीशन देख लेते हैं। ओके, दिस वाज द पोजीशन। ये हमारा कंडक्टर है स्ट्रेट, ये अपना वेलोसिटी, ये अपना मैग्नेटिक फील्ड। मैंने हाथ को ऐसे रखा और मैग्नेटिक फील्ड के तरफ लेके गई। तो ये देखो, थम का है मेरा, थम ऊपर। यू प्लीज़ ट्राई दिस वाइल वॉचिंग द वीडियो। ये रखो वेलोसिटी की डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पर है? ये रखो वेलोसिटी की डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर है। तो अब सिर्फ कंडक्टर को पकड़ के देखो, दिस इज माई कंडक्टर, सो माई थम शोज पॉजिटिव। ये देखो, ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव, समझा? सो दिस इज हाउ यू कैन यूज योर राइट हैंड टू फाइंड आउट द टर्मिनल, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। करना क्या है, अपनी फिंगर्स को वेलोसिटी की तरफ ओपन करना है और मैग्नेटिक फील्ड की तरफ लेके जाना है। मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पर है? पेपर के अंदर। तो देखो, थंब बताता है ऊपर, मीन्स यहाँ पर पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव। चलो, तो ये जो कंडक्टर है ये बनेगा बैटरी, मीन्स देयर विल बी इंड्यूस्ड ईएमएफ, एंड इंड्यूस ईएमएफ में दिस विल बी पॉजिटिव टर्मिनल एंड दिस विल बी नेगेटिव टर्मिनल। इंड्यूस ईएमएफ है तभी तो करंट फ्लो कर रहा है, दैट इज इंड्यूस करंट। ठीक है, अच्छा अब ये तो हो गया सब कुछ। अब यहाँ पर जब मैंने कंडक्टर को बाहर लिया विथ वेलोसिटी v, फ्लक्स चेंज हुआ। फ्लक्स चेंज होता है तो वहाँ पर इंड्यूस ईएमएफ होता है, इंड्यूस ईएमएफ है तो वहाँ पर इंड्यूस करंट है। ये किसका लॉ है? फैराडे का लॉ है, सेकेंड वाला लॉ था। सेकेंड वाले लॉ के हिसाब से, फैराडे के लॉ थे, सेकंड थे फर्स्ट थे, मिस हमको याद नहीं आ रहा। ठीक है, ये फैराडे का लॉ था। फैराडे के लॉ के हिसाब से अगर हम लोग फैराडे का सेकंड लॉ देखें, फ्लक्स रूल। फ्लक्स रूल किसकी बात करता है? फ्लक्स रूल, दैट इज सेकंड लॉ या सेकंड रूल बोलो, वो बात करता है ईएमएफ के मैग्नीट्यूड की। अच्छा चलो, मैग्नीट्यूड भी हटा दो यहाँ पर से, कंफ्यूज नहीं होना। क्या हो रहा है यहाँ पर भाई? इसको चेंज किया, फ्लक्स चेंज हुआ, फ्लक्स चेंज हुआ तो इंड्यूस ईएमएफ है, इंड्यूस ईएमएफ तो इंड्यूस करंट है। ठीक है, अब जब यहाँ पर इस वायर में करंट है तो ये वायर भी कुछ मैग्नेटिक फील्ड बनाना चाहिए। हाँ बराबर, हमने तो बताया ना कि वायर मैग्नेटिक फील्ड ऊपर के डायरेक्शन में करेगा। अच्छा, तो यहाँ पर अगर ऊपर के डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड आया तो ये अपोज हो जाएगा। तो एक काम करते हैं, हम लोग अज्यूम कर लेते हैं, यहाँ पर एक अजम्पशन करते हैं कि ये जो वायर है इसका रेजिस्टेंस बहुत हाई है। रेजिस्टेंस मतलब ये वायर की करंट रोकने की जो कैपेसिटी है वो बहुत मोटी है, बहुत ताकतवर है, बहुत स्ट्रांग है, करंट को जाने नहीं देगी, करंट को इसके अंदर से फ्लो होने नहीं देगी, मतलब उसका रेजिस्टेंस। तो ये वायर का जो रेजिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा हाई है। तो हमारे अब किसी का रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हाई है, वो ज़्यादा करंट को जाने नहीं दे रहा है, तो बहुत स्मॉल करंट फ्लो होगा। फ्लो तो होगा बट बहुत स्मॉल करंट फ्लो होगा, और वो करंट इतना स्मॉल है कि वो करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, हमने बोला है अगर करंट है तो मैग्नेटिक फील्ड तो होनी है, अगर कहीं से करंट फ्लो हो रहा है तो वहाँ पर आसपास मैग्नेटिक फील्ड होगी। तो यहाँ पर अगर करंट फ्लो है मीन्स इंड्यूस करंट है, तो ये इंड्यूस करंट की भी मैग्नेटिक फील्ड होगी। और हम बोलते हैं कि इंड्यूस करंट बहुत स्मॉल है, बहुत स्मॉल है, तो इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है पर वो इतना स्मॉल है कि वी आर सेइंग इट इज़ नेग्लिजिबल। ये रहा यहाँ पर, बहुत आसान सा टॉपिक है, कंफ्यूज नहीं होना। बस डायरेक्शंस ये सब मैं तुमको समझा रही थी, इसलिए तुमको ऐसे लगेगा कि इट इज़ कंफ्यूजिंग यू। ओके ना, ओके
नाउ दैट इज रिटन ओवर हियर, दैट अज्यूम्शन. नाउ कमिंग टू फ्लक्स रूल. अब यहाँ पर जब फ्लक्स आ गया, फैराडे का रूल लग गया भाई, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो गया, ईएमएफ इंड्यूस हो गया, वहाँ पर करंट है, तो हम चलते अकॉर्डिंग टू फ्लक्स रूल. ईएमएफ इंड्यूस कब होगा? व्हेन देयर विल बी चेंज इन द फ्लक्स विद द टाइम. हम लोग ने वो लिख दिया मैग्नीट्यूड फॉर्म में. मैग्नीट्यूड फॉर्म में क्यों लिखा? क्योंकि अगर फॉर्मूला देखें तो ऐसा है, E इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाय डी टी. अब ये माइनस की साइन हमको नहीं चाहिए, तो हम इसको ले लेते हैं मैग्नीट्यूड फॉर्म में. ठीक है, फ्लक्स रूल के हिसाब से दिस इज द फॉर्मूला. फ्लक्स रूल क्यों अप्लाई किया? बिकॉज अकॉर्डिंग टू फ्लक्स रूल अगर चेंज हो रहा है मैग्नेटिक फ्लक्स विद टाइम तो देयर इज इंड्यूस ईएमएफ. दैट इज व्हाट E विल बी इक्वल टू चेंज इन फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम. यही था रूल जो हमने लिख दिया, क्योंकि ये चीज़ हो रही है तो रूल के हिसाब से ये फॉर्मूला है, वो लिख दिया हम लोग ने, बिकॉज रूल फॉलो हो रहा है ये वाला, फ्लक्स इंड्यूस ईएमएफ इंड्यूस करंट. ठीक है, नाउ व्हाट इज फ्लक्स? फ्लक्स इज नथिंग बट बी इंटू ए. ये डॉट प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट हटाने के लिए कॉस थीटा. नाउ लेट्स सी द एंगल बिटवीन, थीटा इज व्हाट? थीटा इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी, दैट इज एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड. यहाँ पर दिस इज योर कंडक्टर, या ऐसे ले लो, दिस इज योर कंडक्टर. मैग्नेटिक फील्ड ब्लू स्केच पेन से बताया था, मैग्नेटिक फील्ड इज, दिस इज योर कंडक्टर, मैग्नेटिक फील्ड इज इनसाइड द प्लेन ऑफ द पेपर. मैग्नेटिक फील्ड इज इनसाइड द प्लेन ऑफ द पेपर. एंड योर एरिया वेक्टर, कंडक्टर का जो एरिया वेक्टर है, इवन दैट इज इनसाइड द प्लेन ऑफ द पेपर. ठीक है, कंडक्टर का जो एरिया वेक्टर है, इवन दैट इज इनसाइड द प्लेन ऑफ द इनसाइड द प्लेन ऑफ द पेपर. मतलब इसी के डायरेक्शन में, एरिया वेक्टर के डायरेक्शन में. अगेन आई रिपीट, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर है, ये रही मैग्नेटिक फील्ड. मैग्नेटिक फील्ड इज ये, दिस इज योर कंडक्टर, माई पेन इज योर कंडक्टर, दिस स्केच पेन इज माई मैग्नेटिक फील्ड. मैग्नेटिक फील्ड अगर यहाँ देखो तो मैग्नेटिक फील्ड इज इनसाइड द प्लेन ऑफ द पेपर. सो मैग्नेटिक फील्ड के साथ में ही है इस कंडक्टर का एरिया वेक्टर. एरिया वेक्टर होता है हमेशा पैरेलल, सॉरी हमेशा परपेंडिकुलर टू द एरिया. अब इस कंडक्टर का एरिया, ये भी परपेंडिकुलर, एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर, लेंथ को परपेंडिकुलर होता है. सो डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन इन द वीडियोस. ओके, दिस इज योर कंडक्टर, दिस विल बी इजी फॉर मी टू एक्सप्लेन. ठीक है, दिस इज योर कंडक्टर, इसका एरिया वेक्टर ऐसे होगा परपेंडिकुलर. ठीक है, नाउ एज द मैग्नेटिक फील्ड इज इनसाइड, सो इट्स ये रही मैग्नेटिक फील्ड, एज द मैग्नेटिक फील्ड इज इनसाइड, एरिया वेक्टर विल ऑल्सो बी इनसाइड. ठीक है, now so both are parallel, एक ही डायरेक्शन में है दोनों. this is your magnetic field which is inside the plane of the paper, and even the area vector is inside the plane of the paper. So what is the angle between them? That is 0. So cos 0 is equal to 1. So here we have substituted that. So phi, that is flux, is equal to B into A. So at place of phi we will write B into A. B is constant, we'll remove that out. So this becomes dA upon dt. Now what is the area? Change in the area with respect to time. Yes, of course, when we are sliding the conductor, the area is changing. यहाँ पर अगर मैं कंडक्टर स्लाइड करती जा रही हूँ तो एरिया चेंज होगा, बराबर. तो ये कंडक्टर यहाँ पर अगर मैं रख रहे हैं हम, व्हाट इज़ द एरिया ओवर हियर? लेट्स सी, दैट इज लेंथ इनटू ब्रेथ. लेंथ क्या है? L. ब्रेथ क्या है? X. दिस इज द ब्रेथ. ब्रेथ क्या है? X. तो लेंथ इनटू X. वी हैव रिटन दैट, लेंथ इनटू X. नाउ लेंथ इज कॉमन. यहाँ थोड़ा समझेगा कि मिस आपने तो यहाँ पर एरिया बढ़ा दिए थे, बता रही हूँ. लेंथ इज कॉमन, कांस्टेंट. कितना भी कंडक्टर को बढ़ाते जाओ, ये लेंथ चेंज होने वाली है कंडक्टर की, नहीं. सो लेंथ इज कांस्टेंट. लेट्स टॉक अबाउट दिस पार्ट, दैट इज द ब्रेथ पार्ट. ये पार्ट इफ़ यू वांट टू कॉल, चलो ठीक है, लेट्स कॉल अबाउट दिस एक्स पार्ट. अगर मैंने इसको मूव किया तो एक्स विल चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, है ना. अगर मैंने इसको मूव किया तो एक्स चेंज हो गया विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो एक्स विल रिमेन इनसाइड the derivative. So dx upon dt is what? It is velocity. dx upon dt is velocity. So at place of dx upon dt we will write velocity. So जब ये कंडक्टर में ये बैटरी बनेगी, ठीक है, ये जो हमारा कंडक्टर है, इस कंडक्टर में जब बैटरी मीन्स ये कंडक्टर जब बैटरी जैसा बिहेव करेगा, एट दैट टाइम ये बैटरी का EMF कितना होगा? B L into V. That is the length of the conductor. B is the magnetic field and V is the velocity of the conductor with which it is moving. ठीक है, चलो, this was the first part. I told this topic is divided into 3 parts. That was the first part. First part के हिसाब से हमको ये मिल गया EMF of the
battery induced in the conductor. Second part. Now if wire BC moves out with velocity v, चलो यहाँ पर वापस देखते हैं हमारा ये वायर इस पार्ट में भी, सेकेंड पार्ट में भी हम हमारे वायर को बाहर भेज रहे विद वेलोसिटी v, हम वायर को बाहर भेज रहे विद वेलोसिटी v. नाउ एवरी कंडक्टर हैज़ फ्री इलेक्ट्रॉन्स. नाउ एज दिस कंडक्टर इज मूविंग विद वेलोसिटी v, ये कंडक्टर के पास जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी मूव आउट करेंगे विद वेलोसिटी v. अभी मैंने बोला था थोड़ी देर पहले, अगर चार्ज, इफ द चार्ज is moving in the electric field, magnetic field, if the charge is moving v, that is velocity, if the charge is moving with velocity v in the magnetic field, तो उस पे लगेगा magnetic force. यहाँ पर देखो ये magnetic field है which is constant magnetic field में ये जो चार्ज है कंडक्टर का that is moving with velocity v, तो वो चार्जेस जो कंडक्टर के अंदर है that is free electrons, उनके ऊपर क्या लगेगा? magnetic force. ये रहा कंडक्टर, इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, इसके ऊपर लगेगा मैग्नेटिक फोर्स. ना व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फोर्स, ये ध्यान से देखो, आई एक्सप्लेन इट. टेक योर राइट हैंड, ठीक है, टेक योर राइट हैंड. राइट हैंड लेने के बाद में ठीक है, ओके. नाउ दिस शोज मी द, यहाँ देखो, आई हैव रिटन इट. राइट हैंड palm rule. Fingers towards magnetic field and thumb shows the direction of the velocity of the positive charge. Fingers towards the magnetic field. कैसे बताऊँ तुम लोग को? ठीक है, magnetic field is going inside the plane of the paper. ऐसे बताते हैं. See, fingers towards the magnetic field. These are your fingers of the right hand. ये ले लो magnetic field के तरफ. Your magnetic field is inside the plane of the paper. ठीक है, और तुम्हारा वेलोसिटी कौन से साइड है? दिस इज़ योर नेगेटिव चार्ज. कैसे एक्सप्लेन करना है तुमको ये? चलो ठीक है, आई विल एक्सप्लेन समहाउ. दिस आर राइट हैंड, दिस आर माई फिंगर्स टूवर्ड्स द मैग्नेटिक फील्ड. ये रहा मैग्नेटिक फील्ड की तरफ मेरी फिंगर्स चली गई, अंदर जा रहा है ना हमारी मैग्नेटिक फील्ड, तो ये फिंगर्स मैग्नेटिक फील्ड की तरफ चली गई. ठीक है, ऐसे भी रख सकती हूँ मैं कि भाई फिंगर्स मैग्नेटिक फील्ड की तरफ, और ये जो थंब है ये वेलोसिटी होगा पॉजिटिव चार्ज का. ठीक है, ये जो थंब है ये होगा वेलोसिटी ऑफ द पॉजिटिव चार्ज. मतलब अगर पॉजिटिव चार्ज यहाँ मूव कर रहा है तो, पर हमारे पास तो नेगेटिव चार्ज है, तो अगर ये थंब पॉजिटिव चार्ज का वेलोसिटी बता रहा है तो पॉजिटिव अपोजिट होता है नेगेटिव, तो नेगेटिव के लिए यहाँ होना चाहिए. बाकी मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन सेम है. मैग्नेटिक फील्ड अभी भी मेरी फिंगर्स बता रही है. ये रहा मैग्नेटिक फील्ड, ये रहा वेलोसिटी. सो दिस पाम किस तरफ है? डाउनवर्ड डायरेक्शन. पाम इज डाउनवर्ड डायरेक्शन, सो मैग्नेटिक फोर्स विल बी इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन. सी अगेन आई विल शो. दिस इज योर कंडक्टर, दिस इज योर कंडक्टर. ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड इज गोइंग इनसाइड. ऐसे बताओ, हाँ, मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रही है. अब देखो, ये देर तुम्हारा कंडक्टर है, ये जो ऐसे लेटा हुआ है ना, इसको मैंने खड़ा करके बता दिया. मैग्नेटिक फील्ड कहाँ जा रही है? अंदर. ओके, थंब शोज द वेलोसिटी ऑफ द पॉजिटिव चार्ज. थंब शोज द वेलोसिटी ऑफ द पॉजिटिव चार्ज. माय थंब शोज द वेलोसिटी ऑफ द पॉजिटिव चार्ज. अगर पॉजिटिव चार्ज का वेलोसिटी इस तरफ है तो नेगेटिव चार्ज का वेलोसिटी इस तरफ थंब बताना चाहिए. तो ये अगर मैं ऐसे कर दूँ उल्टा, तो मैग्नेटिक फोर्स मेरा पाम बताएगा. So palm is showing that magnetic force will be in the downward direction. Okay, again I repeat. See, this is showing my magnetic field. Magnetic field is inside the plane of the paper. Magnetic field is inside the plane of the paper. ये बताना चाहिए velocity of the charge, लेकिन ये thumb बताता है velocity of the positive charge. Velocity of the positive charge, लेकिन हमारे पास कौन सा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज. तो नेगेटिव चार्ज के लिए ऐसे उल्टा होना चाहिए. तो ये मैग्नेटिक फोर्स इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन. फिर से अगर बताऊँ, नहीं बता सकते. आई हैव रिपीटेड इट एन नंबर ऑफ टाइम्स. नाउ यू ऑल कैन ट्राई एंड अंडरस्टैंड. ओके, सो नेगेटिव फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स इज इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन. डाउनवर्ड डायरेक्शन, सो क्या होगा? किस पे? इलेक्ट्रॉन्स पे. तो सारे इलेक्ट्रॉन्स इधर जमा हो जाएंगे. अगर मेरा पॉजिटिव चार्ज होता है यहाँ पर, तो मैग्नेटिक फोर्स कहाँ लगता? ऊपर, क्योंकि ये है मैग्नेटिक फील्ड तुम्हारा. ये सपोज तुम्हारा ये कंडक्टर, ठीक है,
ये तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड जो जा रही है अंदर, तो ये तुम्हारा वेलोसिटी बता रहा है पॉजिटिव चार्ज का, पॉजिटिव चार्ज के लिए थंब। तो मैग्नेटिक फोर्स कहाँ पर लगेगा पॉजिटिव चार्ज पे? ऊपर, ऊपर। मेरे पास पॉजिटिव चार्ज नहीं, मेरे पास नेगेटिव चार्ज है, तो ये थंब उल्टा कर दो। अगर पॉजिटिव यहाँ है तो नेगेटिव यहाँ होगा, तो ये नेगेटिव चार्ज की वेलोसिटी, ये मैग्नेटिक फील्ड अंदर, तो फोर्स कहाँ लगेगा? नेगेटिव चार्ज पे, डाउनवर्ड डायरेक्शन पे। तो यहाँ हमारे पास नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज की वेलोसिटी देखनी थी। ठीक है, ये इधर कंफ्यूज नहीं हो रहा कि अरे हम तो इस रॉड को इस तरफ स्लाइड करके लेके जा रहे हैं, तो वेलोसिटी इस साइड पे क्यों नहीं ले रहे? अरे बेटा हम लोग पाम रूल लगा रहे हैं ना, पाम रूल में ये वेलोसिटी नहीं कंसिडर करेंगे, हम लोग सिर्फ देखेंगे पॉजिटिव चार्ज है कि नेगेटिव चार्ज है, सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देखेंगे। मैग्नेटिक फील्ड इज इनसाइड द प्लेन ऑफ द पेपर, मैग्नेटिक फील्ड इज इनसाइड द प्लेन ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, ये बना दिया। यहाँ पर हमेशा याद रखेंगे थंब अगर इस साइड है, मतलब इस साइड तुम्हारा राइट हैंड ले लो, अगर स्क्रीन पे तुम्हारा मेरा पाम दिख रहा है, ठीक है, तो ये क्या बता रहा है थंब? पॉजिटिव चार्ज की वेलोसिटी। तो मैग्नेटिक फोर्स पॉजिटिव चार्ज पे ऊपर, अगर यहाँ पॉजिटिव चार्ज लेते तो हम मैग्नेटिक फोर्स ऊपर बताते हैं। ठीक है, ये वेलोसिटी नहीं कंसिडर करना, सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड कंसिडर करना। और अगर मैग्नेटिक फील्ड अंदर है और अपना पॉजिटिव चार्ज के लिए ये थंब है, तो नेगेटिव चार्ज के लिए उल्टा होना चाहिए। तो नेगेटिव चार्ज का डायरेक्शन यहाँ पर और मैग्नेटिक फोर्स नीचे, यहाँ रहा मैग्नेटिक फोर्स नीचे। ठीक है, आई हैव रिपीटेड इट सो मेनी टाइम्स। तो मैग्नेटिक फोर्स नीचे है तो सारे इलेक्ट्रॉन्स नीचे जमा हो जाएंगे, सारे मतलब कुछ इलेक्ट्रॉन्स नीचे जमा हो जाएंगे। अगर कुछ नीचे इलेक्ट्रॉन्स आ गए तो ऊपर क्या बचा? ऊपर पॉजिटिव चार्जेस बच गए। अरे ऊपर पॉजिटिव चार्ज नीचे नेगेटिव चार्ज, तो ये तो पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। पोटेंशियल डिफरेंस हो गया मतलब बन गया बैटरी, और यहाँ पर आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड इन दिस डायरेक्शन, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव। ये आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड। अरे ये क्या हो गया? यहाँ पर तो इलेक्ट्रिक फील्ड बन गई। किया क्या था हम लोग ने? हमने सिर्फ यहाँ पर कंडक्टर को मूव किया था, कंडक्टर को मूव किया। कंडक्टर के पास चार्जेस थे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे, वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी मूव हुए। तो जब इलेक्ट्रॉन्स या चार्जेस मूव होते हैं, ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन या चार्जेस मूव होते हैं मैग्नेटिक फील्ड में या कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड में, तो उन इलेक्ट्रॉन्स पे या उन चार्जेस पे मैग्नेटिक फोर्स लगता है। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फोर्स लगा, उसकी वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो गई। ठीक है, अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो गई। अब चार्जेस पे मैग्नेटिक फोर्स लगा तो लेते हैं मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला। नाउ V क्रॉस B, वेलोसिटी इस तरफ है, ये मैग्नेटिक फील्ड ब्लू वाला, वेलोसिटी इस तरफ है, तो दोनों के बीच में क्या है? परपेंडिकुलर, दैट इज़ 90 डिग्री। तो थीटा की जगह पे 90, साइन 90 इज इक्वल टू 1, सो मैग्नेटिक फोर्स इज QVB। ये मिल गया मैग्नेटिक फोर्स इन मैग्नीट्यूड फॉर्म। अच्छा, अब मैंने कंडक्टर को बाहर स्लाइड करके लाया तो आई हैव डन सम वर्क, ऐसे बोल दो, या हाँ आई हैव डन सम वर्क। या तो हम इलेक्ट्रॉन्स पे आ जाते हैं, नोट कंडक्टर छोड़ो, इलेक्ट्रॉन्स पे आ जाओ। हमने इलेक्ट्रॉन्स को नीचे लेकर आया, इलेक्ट्रॉन्स को नीचे लेकर आया तो कौन सा फोर्स लगा इलेक्ट्रॉन्स पे? मैग्नेटिक फोर्स। कौन, क्या लेंथ थी कंडक्टर की? लेंथ L थी। सॉरी, देयर आई मेड अ मिस्टेक, वर्क डन इन मूविंग द कंडक्टर नहीं, वर्क डन इन मूविंग द चार्जेस इनसाइड द कंडक्टर, ये होना चाहिए। देयर आई मेड अ मिस्टेक। ये लेंथ क्या है कंडक्टर की? L। तो हमने इलेक्ट्रॉन्स को नीचे लेकर आए, यहाँ से सारे इलेक्ट्रॉन्स को हम नीचे लेकर आए। कौन सा फोर्स लगा? मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स किस पे? इस चार्जेस पे। सो देयर इज वर्क डन ऑन द चार्ज, तो दैट वर्क डन इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स क्या था? मैग्नेटिक फोर्स। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? ये लेंथ पे, ये पूरी लेंथ। सो वी हैव रिटन दैट। नाउ EMF का दिस इज द फॉर्मूला, दैट इज वर्क डन ऑन द चार्ज। EMF का ये फॉर्मूला है, वर्क डन ऑन द चार्ज, है ना। बैटरी की वजह से तो चार्ज मूव करता है और करंट मिलता है। वर्क डन क्या है? ये लिख दो वर्क डन का फॉर्मूला। चार्ज कौन सा है? अपना इलेक्ट्रॉन। ओके, मैग्नेटिक फोर्स इज QVB, वी हैव रिटन दैट। एंड दिस L, चार्ज कौन सा है? अपना नेगेटिव चार्ज, दैट इज इलेक्ट्रॉन, वी हैव रिटन दैट। E गेट्स कैंसिल एंड E इज इक्वल टू VBL। ओए होए, सी अगेन द EMF। यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ पर हम लोग ने कंडक्टर को मूव किया और चार्जेस के बारे में पढ़ाई की, चार्जेस के बारे में पढ़ाई की, क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ था। तो हमने चार्जेस से, हमने फैराडे के लॉ के हिसाब से पढ़ाई नहीं की, हमने चार्जेस के हिसाब से पढ़ाई की। कि यहाँ पर अभी फ्लक्स वो सब कुछ नहीं देखा, यहाँ पर हमने सिर्फ चार्जेस के हिसाब से पढ़ाई की। और चार्जेस के हिसाब से पढ़ाई करने के बाद में भी ये कंडक्टर बैटरी बनता है, और ये बैटरी जो बनता है उसका EMF यही आया। इसका मतलब फैराडे ने जो बोला था कि भाई EMF इज़ व्हाट? EMF इज़ नथिंग बट चेंज इन फ्लक्स विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ये एकदम सही है, क्योंकि चार्जेस के हिसाब से ये थियोरी प्रूव्ड है, दिस इज़ राइट। बट फैराडे की थियोरी का कुछ प्रूव नहीं था हमारे पास, दैट
ईएमएफ हर चीज़ को आजमाया जाता है कि भाई ठीक है सब चीज़ में लग गई, इसमें लगती है क्या करके बता, इसमें होता है क्या करके बता। वैसे आधी चीज़ें तो प्रूव हो गई, मतलब ऑलमोस्ट 90% प्रूफ था फैराडे का कि भाई चेंजिंग फ्लक्स की वजह से ईएमएफ इंड्यूस होता है और वहाँ पर करंट होता है। लेकिन ये चार्जेस के हिसाब से भी ईएमएफ वही बनता है क्या, क्योंकि चार्जेस के हिसाब से ईएमएफ यही बनना चाहिए, दैट इज़ VBL। तो जब फैराडे के हिसाब से हम लोग ने चेक किया, यहाँ हम लोग ने फैराडे के हिसाब से चेक किया था, इंड्यूस किया ईएमएफ, करंट है लूप में, फ्लक्स का फॉर्मूला लगाया, फैराडे का फ्लक्स रूल लगाया और चेक किया, तो ईएमएफ जो बना मतलब बैटरी का जो ईएमएफ है BLV है। सिमिलरली यहाँ पर भी हम लोग को BLV मिला, मीन्स यस। कंक्लूजन, सर्किट का कोई भी पार्ट, जैसे ये अपना सर्किट है, ये सर्किट का कोई भी पार्ट, ऐसे कोई भी सर्किट हो, कोई भी शेप हो, अगर सर्किट का कोई पार्ट मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है, तो वहाँ पर जो ईएमएफ बनेगा, ठीक है, वहाँ पर जो ईएमएफ होगा, इंड्यूस ईएमएफ होगा, वो होगा विथ रिस्पेक्ट टू द चेंज इन फ्लक्स विथ टाइम। समझा? अगर कोई भी सर्किट का पार्ट कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है तो वहाँ पर फ्लक्स जनरेट होगा, मींस फ्लक्स चेंज होगा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। यहाँ अभी तो बताया कि भाई सर्किट का अगर ये पार्ट मूव कर रहा है तो यहाँ पर क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। मैग्नेटिक फील्ड तो कांस्टेंट है, लेकिन अगर ये सर्किट का कोई भी पार्ट, कोई भी सर्किट हो, कोई भी शेप की हो, अगर उसका कोई भी पार्ट मूव कर रहा है तो वहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो इंड्यूस ईएमएफ होगा, तो इंड्यूस ईएमएफ होगा तो इंड्यूस करंट होगा। और अगर इंड्यूस ईएमएफ है तो वो किसको इक्वल होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस ईएमएफ विल बी इक्वल टू द change in flux with respect to time. समझा? This is the conclusion. This was second part. yalla coming to third part. Now third part में we are not changing the magnetic, नहीं, we will be in third part we will be changing the magnetic field. अभी तक दो पार्ट एक्सप्लेन किए, दोनों पार्ट में हम लोग ने मैग्नेटिक फील्ड चेंज नहीं किया था। नाउ थर्ड पार्ट मैग्नेटिक फील्ड चेंज करते हैं। सर्किट ले लिया, लूप, ठीक है, ए पार्ट में देखो मैग्नेटिक फील्ड अलग था, हम लोग ने मैग्नेटिक फील्ड चेंज कर दी। मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो, ध्यान देना, मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो गई। यहाँ देखो मैग्नेटिक फ्लक्स अलग, जैसे ही मैंने मैग्नेटिक फील्ड चेंज किया मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो गया। मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो गया तो मतलब इस सर्किट में ईएमएफ इंड्यूस होना चाहिए। अगर इस सर्किट में ईएमएफ इंड्यूस हुआ तो यहाँ पर इंड्यूस करंट होना चाहिए। अगर यहाँ पर इंड्यूस करंट है तो डायरेक्शन क्या होना चाहिए, यहाँ देखो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, अंदर, तो इंड्यूस करंट की जो मैग्नेटिक फील्ड होनी चाहिए वो ऊपर, तो करंट कैसा होना चाहिए, इस डायरेक्शन में, ये होना चाहिए डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, चलो वो छोड़ देते हैं, अब आते हैं। अच्छा, यहाँ पर ये वायर को तो हम टच नहीं कर रहे, वायर का मतलब ये लूप का तो कोई भी हिस्सा मूव नहीं कर रहा, मतलब जो वायर है दैट इज़ द कंडक्टर, उसके चार्जेस किस पे हैं, उसके चार्जेस है रेस्ट पे। अगर चार्जेस रेस्ट पे होते हैं, ठीक है, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड के वजह से रेस्ट वाले चार्जेस पे कोई भी मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगेगा। सिर्फ जो भी फोर्स लगेगा ये चार्जेस पे जो रेस्ट पर है। कौन से चार्जेस, कंडक्टर के अंदर, वायर के अंदर जो चार्जेस है, मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है लेकिन चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से रेस्ट वाले स्टेशनरी चार्जेस पे कोई फोर्स नहीं लगेगा। व्हाट अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रिक फोर्स, यस ऑफ कोर्स, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुई है। कहाँ हुई है मिस, अरे बेटा मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुई, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ, ईएमएफ इंड्यूस हो गया, बैटरी बन गई, तो कौन सी फील्ड आ गई, यहाँ पर आ गई इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है और चार्जेस रेस्ट पे है तो भी उन पे इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा। अरे हाँ बराबर, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फोर्स लगने वाला है। ठीक है, लॉरेंस फोर्स के हिसाब से देखते हैं। लॉरेंस फोर्स इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स, वो मैंने लिख दिया। तो भाई जो भी फोर्स आएगा इस चार्जेस पे वो होगा ड्यू टू just this E term, that is due to electric field, not due to magnetic field, because the charges are at rest, they are not moving with any velocity. समझ में आया? So conclusion, here the conclusion is Faraday concluded and came to a new law. न्यू लॉ दे दिया, फैराडे खुश हो गया, बोले अरे वाह मैं राइट प्रूव होता जा रहा हूँ, अब मैं न्यू लॉ दे देता हूँ कि अगर वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है, अच्छा मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है, अगर किसी जगह पे मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है तो वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी। इंड्यूस ईएमएफ है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी तो जनरेट होना है। ये उसका नया लॉ था, दैट इन अ रीजन वेयर मैग्नेटिक फील्ड इज चेंजिंग विद टाइम, टाइम के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड अगर चेंज हो रही है, ऐसा नहीं एक ही बार चेंज होकर रुक गई तो चलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई, नहीं, मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है बार बार विद टाइम, तो वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड्स आर जनरेटेड। ये था न्यू लॉ गिवन बाय
Faraday. So this completes the first part, that is translational motion of a conductor.